Hello student, myself Kavita ma'am from ETS. Today we will learn chapter 6, the ox and the frog. See this, what is this? This is cow. Color the outline of a cow. Write down one important use of a cow in the space given below. ये क्या है? काऊ है, तो हमें इसकी वन इम्पोर्टेंस लिखनी है। आप जानते हो काऊ यानी कि गाय हमें क्या देती है? दूध देती है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? काऊ गिव्स अस मिल्क, राइट। So students, do you like to listen and watch stories? Now let's see the video of this story. The Ox and the Frog. Once upon a time, there were two best friends, Mr. Ox and Mr. Frog. Mr. Frog looked at his friend, the Ox, and wished he could be that strong and powerful. The Ox in turn told Mr. Frog that though he may be bigger, he couldn't catch flies with his mouth like the frog did. Mr. Frog wasn't convinced of his own good qualities and tried to think of ways to become like his friend. Just then, their other friend Mr. Rabbit stopped by. He suggested that Mr. Frog try holding his breath. This might make him bloat up and become bigger. Mr. Frog thought it was an excellent idea and took a huge gulp of air and held it. Moments passed and Mr. Ox and Mr. Rabbit could see that Mr. Frog was indeed becoming bigger. Mr. Rabbit's plan was working. They noticed, however, that he was also becoming blue. He had held his breath for too long. Mr. Frog's friends yelled at him to stop or he would burst. Mr. Frog blew out and became almost smaller than he had seemed initially. He was feeling tired and sad. Mr. Rabbit apologized for giving him a foolish idea and told him that he was perfect the way he was. Mr. Ox too asked him not to change as he wasn't as nimble as Mr. Frog was. Mr. Frog began to realize that he was unique and smiled at his friends. He jumped away into the forest along with his friends, glad to be himself. Now let's understand the story. In this chapter, there are three main characters. What is this? This is frog. This is ox. And this is rabbit. Right? And what is this? This is tongue. What is this? This is housefly. And this is legs. And this is blue color. Now let's read the story. Now let's read the story. Once upon a time, there were two best friends, Mr. Frog and Mr. Ox. एक बार दो बेस्ट फ्रेंड थे, मिस्टर फ्रॉग एंड मिस्टर ऑक्स. Mr. Frog wanted to be strong, big and powerful like Mr. Ox. Mr. Frog जो है वो strong, big और powerful बनना चाहते हैं जैसे कि Mr. Ox है. He said, "My friend, Mr. Ox, look at you, strong and big and powerful. I wish I was like you." Mr. Frog कहता है, आओ मेरे दोस्त मिस्टर ऑक्स, तुम अपने आप को देखो, तुम कितने स्ट्रॉन्ग, बिग और पावरफुल हो. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे बनना चाहिए. मिस्टर ऑक्स सेड, "व्हाई मिस्टर फ्रॉग? यू मे बी स्मॉल बट यू आर वेरी स्मार्ट." मिस्टर ऑक्स कहता है, क्यों मिस्टर फ्रॉग? तुम छोटे हो लेकिन तुम बहुत ही स्मार्ट हो. I can never catch a fly with my tongue the way you do. मैं कभी भी अपने टंग से फ्लाई को कैच नहीं कर सकता जैसे कि तुम कर सकते हो. These are rhyming words. Big, fig.
never clever. Mr. Frog said, "That's nothing, I am sure. You can squash a housefly with your huge and heavy legs." मिस्टर फ्रॉग कहता है, उससे तो कुछ भी नहीं होता, मैं श्योर हूँ, मुझे पता है कि तुम अपने हैवी और भारी लेग से हाउस फ्लाई को कुचल सकते हो। हाउ आई विश आई कुड बी लाइक यू। काश मैं तुम्हारे जैसा बन पाता। जस्ट देन मिस्टर रैबिट पास्ड बाय। उसी वक्त मिस्टर रैबिट उनके नज़दीक से गुजर रहा होता है। He said, "Take a deep breath and hold it long enough." वो मिस्टर फ्रॉग से कहता है, तुम एक लंबी सांस लो और जब तक रोक सको उसको रोक लो। आई एम श्योर यू विल बिकम बिग एंड ब्लोटेड। मैं श्योर हूँ, मुझे पता है कि इससे तुम बड़े और मोटे दिखोगे। Here is one question. What are the words used to describe the ox? Ox के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द यूज हुआ है? तो हमें पता है क्या है? Strong, big and powerful, right? Here is rhyming word. Deep, jeep. Here is a glossary. Bloated, something which appears swollen or puffed up. कुछ ऐसा जो हमें गुब्बारे जैसा फूला हुआ दिखे। That does no sound like a good idea, Mr. Rabbit, said Mr. Ox. मिस्टर ऑक्स ने मिस्टर रैबिट से कहा, ये आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा। I want to try, please, begged Mr. Frog. मिस्टर फ्रॉग ने कहा, विनती की कि प्लीज़ मुझे ये एक बार करने दो, मुझे ट्राई करने दो। मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स वॉच्ड मिस्टर फ्रॉग as he took a deep breath. जब मिस्टर फ्रॉग डीप ब्रीथ ले रहे थे तब मिस्टर रैबिट और मिस्टर ऑक्स उसे देख रहे थे। मिस्टर फ्रॉग लुक्ड पफ्ड अप। मिस्टर फ्रॉग कैसे गुब्बारे की जैसे फूल रहे थे, ऐसे दिख रहे थे। मे बी योर प्लान इज वर्किंग, मिस्टर रैबिट सेड मिस्टर ऑक्स। मिस्टर ऑक्स ने मिस्टर रैबिट से कहा, मुझे लग रहा है तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। मिस्टर फ्रॉग सीम्ड टू लुक बिगर नाउ। अब मिस्टर फ्रॉग बड़े दिख रहे थे। बट स्लोली ही स्टार्टेड टर्निंग ब्लू। लेकिन वो धीरे धीरे ब्लू कलर के दिख रहे थे। हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट कलर डिड द फ्रॉग टर्न इनटू? फ्रॉग का कलर कैसा हो गया था बाद में? तो कैसा कलर हो गया था? ब्लू, राइट? ओ नो, ही इज होल्डिंग हिज ब्रीथ टू लॉन्ग, ही इज टर्निंग ब्लू, क्राइड मिस्टर ऑक्स। मिस्टर ऑक्स जोर से चिल्लाए और बोले, ओ नो। मिस्टर फ्रॉग ने बहुत ज़्यादा अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखा है और वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं। Both Mr. Rabbit and Mr. Ox shouted at Mr. Frog, "Stop, stop! Let out your breath or you will burst." Mr. Rabbit और Mr. Ox दोनों जोर से चिल्लाए और बोले, मिस्टर फ्रॉग बंद कर दो, ये स्टॉप कर दो, अब तुम्हारी सांस को तुम बाहर निकालो वरना तुम फूट जाओगे। मिस्टर फ्रॉग could not hold his breath any more. मिस्टर फ्रॉग अब सांस ज़्यादा नहीं रोक सकते थे। ही ब्लू आउट एंड बिकम स्मॉल अगेन। मिस्टर फ्रॉग ने अपनी सांस बाहर निकाली और वो फिर से छोटे हो गए। ही वॉज वेरी टायर्ड। अब मिस्टर फ्रॉग बहुत थके हुए थे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैड आइडिया, मिस्टर फ्रॉग सेड मिस्टर रैबिट। मिस्टर रैबिट ने मिस्टर फ्रॉग से कहा, मुझे माफ़ कर दो ऐसे पेड आइडिया देने के लिए। यू आर लवली एज यू आर। तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। प्लीज़ स्टे द सेम। जैसे हो वैसे रहो। यस, प्लीज़ डू नॉट चेंज योर सेल्फ इंटू मी, सेड मिस्टर ऑक्स। प्लीज़ मिस्टर फ्रॉग तुम मुझ जैसे बनने में अपने आप को चेंज मत करो। आई मे बी बिग बट आई एम नॉट
half as nimble as you. मैं बिग तो हूँ लेकिन तुम्हारी जैसे जल्दी से फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकता. Do stay as you are. You are unique. तुम जैसे हो वैसे रहो. तुम अच्छे हो. तुम यूनिक हो, सबसे अलग हो. मिस्टर फ्रॉग स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड. मिस्टर फ्रॉग अपने फ्रेंड के सामने स्माइल करता है. ही रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस. मिस्टर फ्रॉग को पता चल गया था कि उन्होंने क्या गलती की है. ही जम्प्ड अवे विद देम हैप्पीली इनटू द फॉरेस्ट. वो जंप करके हैप्पीली फॉरेस्ट में चला गया. ग्लैड टू बी अलाइव एंड ग्लैड टू बी हिमसेल्फ. ग्लैड टू बी अलाइव एंड ग्लैड टू बी हिमसेल्फ. मिस्टर फ्रॉग खुश थे क्योंकि वो जिंदा थे और अब वो किसी की तरह नहीं बनना चाहते थे. हियर इज अ ग्लोसरी. निम्बल, फास्ट एंड लाइट इन मूवमेंट. चलने में और दौड़ने में फास्ट और जल्दी. हियर इज राइमिंग वर्ड. चेंज, स्ट्रेंज. So students, today we have learned story and also watched the video of it. I hope you all understood this story. Thank you. Take care. Goodbye.